ये है संकीर्णता की शक्ति, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले, क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तू उनको स्नेह करे, तू ही तो है सहन शक्ति, ज्ञानी उदासी से तू है परे, समाने सभी के व्यवहार को, समाने सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति भरी, तू शक्ति भरी, तू है शक्ति। ओम शांति दीदी। Om Shanti. Shanti Didi. How is everyone? Good दीदी। What about you दीदी? I am very good. I'm really sorry about yesterday. I had a meeting at 5 o'clock. फिर उन्होंने 4 बजे कर दी और हमारी सीनियर दीदी हैं, मैं उनको नो नहीं कर सकती, therefore. ठीक है? It's okay दीदी। Thank you. तो सबने होमवर्क किया कि नहीं? Good morning, positive thoughts in the morning and at night, वो सब कर रहे हो? First tell me, how does it feel to be like this? कैसा लगता है ऐसे करके? Does it make a change? Did you find a change in yourself? In your attitude towards yourself? It's a little bit change. ज़्यादा तो little bit. Little bit change. करते हुए कैसा लगता है? करते हुए तो अच्छा लगता है। So, हाँ बोलो, कुछ कहने लगे थे? कुछ कहने लगे थे? एक दीदी ऐसा रहता, अच्छा अभी हमको बाबा को बुलाना है, मतलब पहले तो अपने रजाइली नहीं अभी पहले बात करनी है उनको सब, तो वो चीज एक रहता है दिमाग में, पहले वो करके फिर सोएंगे। वो जब ऑटोमेटिक आदत हो जाएगी ना, देन ऐसे नहीं लगेगा अभी करना है, वो मतलब उसके बिना आपको नींद ही नहीं आएगी, यू विल फील समथिंग इज मिसिंग, ऐसे मुझे लगता है। और सोनम आप बताएं। I see two changes. I very subtle changes. Probably मेरे में आया है इसलिए मुझे लग रहा है. So my daughter, she's 5 years old, so she's at home, because of this pandemic and everything. So जब बच्चा सारा दिन घर में होता है तो आप भी उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, वो भी चिड़चिड़ा होता रहता है आपसे. So I can see that I am letting go a lot of things with her, and in that probably she's responding that way, that she's also not getting very agitated and irritated, and she's also flowing, naturally, and I don't really, so to say, discipline her. And I'm also seeing some change at my professional level, so अब पहले कोई मेल पढ़ते थे या कुछ पढ़ते थे तो आपको होता था अभी इसको जवाब लिख के I'll just sort this right now, and now I don't know, I mean I take some time, थोड़ा उस time I get a little this thing, but then I choose not to react and just stop for a while.
I mean, these subtle changes that I have been probably noticing. Very nice, very nice. Pooja, would you like to share? Unmute yourself. Unmute yourself. We can't hear you. Yeah, similarly, I find myself more calm and not, reacting, as she rightly said. You just start taking things in your stride. It's okay. They are on their own journey. I'm on my own journey, whoever it is. Correct. And let it be. I don't have to correct the whole world. I'm responsible only for myself. So Correct. no matter whoever, says or does, it's Sahi a bola. change in your thinking and, your reaction to people, I guess. So the mind is getting trained yet. Yeah. It's just been 4-5 days, right? Yeah. And the other wala habit has been for many births. So it takes a little Yeah, bit. as I said, I still miss it. I mean, it's 8:30, it's 9. I've not read my newspaper. It's like, teacher maregi, kaam nahi kiya. It's like you're used to finishing your newspaper before breakfast. How come? So they are on their own journey. I am on my own journey. And if I correct them, add one thing. Whatever I do, I cannot change them by correcting them. If you try to connect others, try for an entire life, they will not change. You change yourself, the other one will change. Correct. Yeah. Poonam, you want to say something? Poonam, are you there? Yes, happy I'm there, and I'm really enjoying the discourse, and it is real bliss. And I have seen that the peace is within you. If you train your mind that you have to stop for a while, I think things will be all right. That's what you have told in 2-3. Yes. So you're experiencing, Manji. Sangeeta, you are there? इधर उधर होंगे. अंशु, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मेरे में तो यही चेंज अभी मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि एक और बहुत बड़ा सीन अभी मेरी डॉटर की मैरिज हुई है. हाँ जी. तो है ना, एक बहुत बड़ा इवेंट लाइफ का है, बट इससे पहले शायद कुछ और होता. अभी जो है मुझे भी यही लगता है कि उसकी अपनी जर्नी है, एंड आई डोंट हैव टू इंटरफेयर इन हर एवरी बिट स्मॉल थिंग्स. तो उसको भी तो मैंने एक यही देखा है कि मतलब मैं उसके लिए जो गाइड कर दिया, समझा दिया, नाउ शी इज देयर. तो एक चेंज आया है. शायद पहले ऐसा ना हो कि कुछ और होता. तो नाउ आई एम टेकिंग द थिंग्स कि ये सब सीन्स आ रहे हैं, कुछ थोड़े अच्छे हैं, कुछ थोड़े ऐसे. Everything is okay. Main thing is that everything is okay. And even if you don't say it's okay, it is still there, right? Yes. By wishing it away, it will not go away. तो हमारा एक motto रहता है, I change and the world changes. Yeah. Because my world changes, right? तो जब हम योग करते हैं, तो उससे हमारे अंदर से शक्तियां विकसित होती हैं, शक्तियां इमर्ज होती हैं, है ना? हम आत्माएं, हम सब के अंदर एक पावर है, जो हमने पावर जो है वो है मेरा एक गुण है. इट इज अ वर्च्यू. और पावर्स भी हमारी अनेक किस्म की हैं. मेनली 8 शक्तियां हैं. हम दुर्गा माँ को कहते हैं ना अष्टभुजाधारी, है ना? दुर्गा माँ की 8 भुजाएं क्या है? कोई देवी उसकी 8 भुजाएं नहीं होती. कोई 8 भुजाएं वाला हमारे सामने आ जाए, हम कहेंगे इट इज एबनॉर्मल. हम सोचेंगे ये तो कुछ अजीब है और हमें शायद डर भी लग जाए उसको देखकर. 8 भुजाएं, इट्स सिंबॉलिक. हम जब कहते हैं किसी को कि आप मदद करो, तो हम क्या कहते हैं? गिव मी अ हैंड, है ना? हाथ बटाओ. हाथ मीन्स हाथ से काम होता है. हाथ शक्ति का प्रतीक है. और सिर किस चीज का प्रतीक है? किसका सिंबल है? हेड. ईगो का नहीं है. कहते हैं ना बड़ा सिर चढ़ा है, he has a swollen head. कहते नहीं है? तो रावण also ना, we used to say रावण के 10 सिर क्यों दिखाए? 10 सिर में से 5 सिर नर के, 5 सिर नारी के. अब जब वो दोनों टकराते हैं, तो we know what happens. I don't need to say the word it, right? ईगो एक की, ईगो दूसरे की,
5 विकार ऊपर अपने क्लाइमैक्स पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो नेट रिजल्ट क्या होगा? एक रावण का ही क्रिएशन होगा ना। रावण डजंट मीन ना, रावण इज ऑल्सो सिंबॉलिक किसका? वाइसेस का, है ना। और हाथ किस चीज का? सहयोग का, मदद करने का, शक्ति का। और जब हम किसी को कहते हैं किसी की बहुत शक्ति है, तो क्या कहते हैं? उसके मसल्स दिखाते हैं ना, बाजू ऐसे करके दिखाता है वो कि वे आई एम स्ट्रॉन्ग, राइट। तो ये शक्ति कौन सी शक्ति है? बाजुओं की फिजिकल वाली शक्ति नहीं है, ये आत्मा की शक्ति है। तो ये कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे से विकसित होती हैं, और इन शक्तियों को एक एक हम करेंगे, और इनको हमने यूज कैसे करना है। पॉइंट सारा किस चीज का है? वॉट एवर वी आर डूइंग, आई हैव टू अप्लाई इट इन माई लाइफ, देन माई लाइफ चेंजेस। जैसे मैंने इतनी सारी और मेडिटेशन, रेकी, प्राणिक हीलिंग, एंजल थेरेपी, मतलब यू नेम इट, आई थिंक आई हैव डन सो मेनी थिंग्स, पर वो करके छोड़ दिया, खत्म। इसका क्या है? करते चलो और अपने जीवन को बदलते चलो। तो हम अगर यहाँ धरती पर बैठे हैं तो हमारे में बहुत सारी चेंजेस करने की जरूरत है, तो बैठे हैं ना, क्योंकि कार्मिक अकाउंट्स को हमने फिनिश करना है 1 by 1। तो इन शक्तियों को जब हम यूज करते हैं तो अपनी सिचुएशंस को हम इजिली पार कर लेते हैं। सिचुएशंस किसके पास नहीं है? पैंडेमिक इन इटसेल्फ एक सिचुएशन है, पर सबके लिए पैंडेमिक में अलग सिचुएशन है। किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम आ गई, किसी को हेल्थ की आ गई, किसी को कोई और आ गई, सबके कोई ना कोई प्रॉब्लम रही, पर अलग रही, है ना। तो हमें कैसे डील करना है, वी विल सी दैट। तो पहली शक्ति है द पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति, है ना। सहन करना आज की डेट में उसको क्या माना जाता है? कमजोरी, कायरता। सहन कर गया, बोल नहीं पाया, जवाब नहीं दे पाया, कैसा है तू 4 सुनाता तो ने पता चलता, एडवाइजर भी ऐसा बोलता है ना। पर सहन करने के साथ 2 शब्द लगते हैं, सहनशील। शील का मतलब है चरित्र। जो सहन करता है उसका चरित्र निखरता है, उसका कैरेक्टर बहुत सुंदर बन जाता है। और सहन के साथ शक्ति, जिसके में सहने की शक्ति है उसका कैरेक्टर एक्सलेंट बन जाता है, देवी और देवता के समान बनता है। आपको मैंने वो जो अभी सॉन्ग लगाया था, वो सॉन्ग में भी सारी शक्तियों को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप बाद में आराम से बैठ के उसको देखना, आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है ना। अब संसार में हमारे को कोई ना कोई चीज को सहन तो करना ही पड़ता है, ठीक है। आप देखेंगे हमारी हिस्ट्री में भी, हमारी माइथोलॉजी में भी, किसी ने सहन किया, कोई चुप रह गया, और कोई बहुत जोर से बोल गया, रिएक्ट कर गया। जो बोलकर रिएक्ट करता है उसका रिजल्ट क्या होता है? पॉइंट ये है हमें रिजल्ट मिलना चाहिए ना। चिल्लाने से भी होता क्या है? सपोज लाइक हमारे टीवी एंकर्स आजकल जो करते हैं, क्या करते हैं? बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत डिस्कशंस करते हैं, एक चिल्ला रहा है, दूसरा चिल्ला रहा है, देयर इज मेहम ऑन दैट इन दैट सीन ओनली। तो क्या उसका रिजल्ट क्या होता है? सभी चिल्ला रहे हैं, नथिंग दीदी। रिजल्ट तो कुछ नहीं मिलता ना, कोई चेंज तो आता नहीं। वो कहते हैं गवर्नमेंट खराब है, वो कहते हैं ये गवर्नमेंट नहीं, वो गवर्नमेंट खराब है। सबको खराब बोलने से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पॉइंट ये है कहाँ सहन करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ स्टैंड अप करना है अपने लिए, इस चीज को समझना है ना। अब आप देखो, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। सो आप पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि बच्चे पेड़ को पत्थर मार रहे हैं, और जब बच्चे पेड़ को पत्थर मार रहे हैं, पेड़ उन्हें क्या दे रहा है? फल देता है ना। और वो जितना मारते हैं वो उतना ज्यादा फल देता है, और जितना ट्री इज लेडन विद फ्रूट उतना वो झुका होता है, नम्र होता है। जो लकड़हारा भी उस पेड़ को काटता है, जो लकड़हारा पेड़ को काटता है पहले उसको वो छांव देता है,
पेड़ के पत्ते जो हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो देना नहीं छोड़ता, वो देता जाता है। तो नेचर की हर चीज हमको कुछ ना कुछ देती है और वो देना बंद नहीं करती। हमें उससे सीखना है। द पावर टू टॉलरेट इज द पावर टू गिव। कोई कैसा भी है, मुझे क्या करना है, हम मेरे को अपने ऊपर फोकस करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की स्टोरी है ना कि वो बैठे थे, एक आदमी आया उनके पास, खूब चिल्लाया, he was anti whatever he was doing। तो महात्मा बुद्ध की जो स्टाइल था वो तो स्माइल करते रहे। तो उसको और गुस्सा आया, उसने बोला मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। सो ही सेड ओनली वन सेंटेंस कि अगर आपको कोई गिफ्ट दे और आप उसको एक्सेप्ट ना करो तो वो गिफ्ट किसका हो गया। इस सेंटेंस ने उसको उसका चेला बना दिया। वो चिल्ला रहा है, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही तो मेरे तक पहुंच ही नहीं रहा। इट रियली डजंट मैटर, है ना। जो चिल्ला रहा है वो अपनी शक्ति को कम कर रहा है। जो चिल्ला रहा है वो ये दिखा रहा है मैं स्टेबल नहीं हूं। जो चिल्ला रहा है वो ये दिखा रहा है कि मेरे अंदर यही भरा हुआ है। क्या दोगे, जो होगा वही दोगे ना। अगर मैं आपको चावल देना चाहती हूँ, मेरे पास चावल के का स्टॉक तो होना चाहिए ना। उसके पास गुस्से का स्टॉक है, वो गुस्सा दे रहा है। उसके पास बैड बिहेवियर का स्टॉक है, वो बैड बिहेवियर दे रहा है। उसके ऊपर चिल्लाने का स्टॉक है, वो चिल्ला रहा है। और अगर आपको कोई पत्थर मार रहा है, जैसे पेड़ को पत्थर मारते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ है इसलिए पत्थर मार रहा है। आपके पास जो है उसको दो, है ना। अब आप देखो, हमें हमारी हिस्ट्री में भी टू बी एबल टू टॉलरेट, उसके लिए हमारे को दो शक्तियां चाहिए, द पावर टू लव एंड द पावर टू फॉरगिव। जो जीसस क्राइस्ट की स्टोरी है, क्या है, जिन्होंने उसको सूली पर टांगा, उसने क्या बोला, फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, है ना। हम कहते हैं वो तो जीसस क्राइस्ट था, पर बाबा भगवान कहते हैं तुम सब में ऐसी शक्ति है। आप किसी चीज से अपने आप को टोटली डिटैच कर लो, फिर वो आपको इम्पैक्ट करना बंद कर देती है ना। जैसे हम धूप में खड़े हैं, बहुत स्कॉचिंग हीट है, गर्मी है, आप अंदर आ जाते हो, पर्दा लगा लेते हो, तो आपको वो अनुभव ही नहीं होता। यू डोंट एक्सपीरियंस दैट हीट बिकॉज यू हैव डिटैच्ड योरसेल्फ फ्रॉम दैट। तो पॉइंट ये है, हम ये समझें कि मैं हूं कौन। आई एम दैट टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। आई हैव ऑल दीज वर्च्यूज। मेरे क्या वर्च्यूज हैं, शांति, प्रेम, शक्ति, पवित्रता। पवित्रता का मतलब सिर्फ सेलिब्रेसी से नहीं है। पवित्रता का मतलब है मेरे प्योर संकल्प, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना। कोई कैसा है, मैं उसके लिए वो भावना बदलूं। और आप देखो, हम कहते तो हैं कि दुनिया में कोई अगर जवाब ना दे पाए तो हम कहते हैं कितना कमजोर है। पर अगर आपने किसी भी चीज की रेजिलियंस को देखना है, जैसे कोई टेबल है, कोई चीज है, कोई मेटल है, देखना है वो कितना स्ट्रांग है, तो क्या करते हो, उसके ऊपर हथौड़े मारते हो, देखते हैं कितने हथौड़े मारने के बाद वो टूटता है। ऐसे होता है ना। तो हमारे को भी ये देखना है, हमारे को पर कितने हथौड़े लगते हैं तो हम टूटते हैं। हम नहीं टूटेंगे, क्यों। आज मुझे पता चला मेरा पिता कौन है। कल तक मैं वाज लाइक एन ऑर्फन, मैं ढूंढ रही हूँ भगवान कौन है, कहाँ है। कभी भक्ति एक की कर ली, कभी दूसरे देवी देवता की कर ली, कभी एक मंदिर में चले गए, कभी दूसरे मंदिर में जाकर कुछ कर लिया। तो हम भटक रहे थे। जब हम फोकस हो जाते हैं, रियलाइज करते हैं कि वो सुप्रीम पावर मेरा अपना पिता है, वो मेरे साथ सर्व संबंध निभाता है ना। तो इसका मतलब क्या है, मेरी शक्ति भी उसकी शक्ति के समान बन जाती है। तो जस्ट अ मिनट। तो आई हैव ऑल दीज पावर्स नाउ विद इन मी। आई हैव द सुप्रीम मोस्ट विद मी। अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सिर्फ everything is what, one thought away. Just tell yourself
the supreme power is with me, you will feel it. Just tell yourself, मैं सहनशीलता की मूर्ति हूं. सुबह उठते ही बोलो, मुझ में फुल पावर है टॉलरेट करने की. अपने आप को ऐसा बोलो. उठते ही आपके अंदर से वो शक्ति इमर्ज हो जाएगी. जैसे किसी को एमनेशिया होता है तो क्या कहते हैं, वो भूल गया, घर वालों को भूल गया. या एक छोटा बच्चा भी होता है, वो भूल जाता है अपने बहुत पुराने बचपन की स्टोरी. माता पिता उसको बोलते हैं, देखो तुमको हम शिमला लेके गए थे. वो कहते हैं, मुझे नहीं याद है, हम यहाँ गए थे, याद है तुम वहां खड़े होके रो रहे थे, तुम्हें फिर मैंने आइसक्रीम दी. आइसक्रीम के नाम से उसको याद आ जाता है, ओ यस. उसको थोड़ा थोड़ा धुंधला याद आता है. हमें भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि हम तो ये हैं. जब हम उसको बार 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 रिवाइज करते हैं तो वो उतनी ही ज्यादा वो शक्ति जो है हमारे से विकसित हो जाती है. और फिर हम रिएक्ट करने की बजाय एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के लायक बन जाते हैं. तो सहन करना कोई कायरता नहीं, सहन करना शक्ति है. सहन करने से मेरा चरित्र निखरता है ना. हम किसको याद करते हैं? जो हमारे को प्यार करता है. अगर हम मेरे में प्यार की शक्ति है, एक्चुअली अनकंडीशनल निस्वार्थ प्रेम है, और मैं अब एक माँ जो होती है अपने बच्चे के लिए गुस्सा भी होती है, उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी होती है ना, तो बच्चा वापस उसके पास आता है. उसको पता है यहां से मुझे सब कुछ मिलना है. माँ उसकी हर चीज को सहन कर जाती है और फिर उसको सहन करके खुद में समाती भी है, जो कि हमारी नेक्स्ट शक्ति है ना. जैसे हम कहते हैं ना, मैंने बहुत सहन किया. अगर मैं ये सेंटेंस बोलती हूं तो क्या मैंने सहन किया? 10 लोगों को मैं जाके बताती हूँ, यू नो दिस हैपेंड विद मी, इसका मतलब मैंने 0 सहन किया. अगर मुंह से निकल रहा है, माना मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है. तो हमारे को क्या चाहिए इसके लिए? लव एंड फॉरगिवनेस, द पावर टू फॉरगिव. ठीक है, तो ये है सहन करने की शक्ति. अब मैंने सहन कर लिया, पर उसको साथ साथ समाने की शक्ति चाहिए. Throat is running dry. I need some water. So, हमने सहन कर लिया और हमने सबको बताया नहीं. बताया तो मतलब सहन नहीं किया, उसको समाना पड़ता है. समाना means the power to accommodate. आपके साथ मैं एक और स्क्रीन शेयर करूंगी. Okay, I am not able to find that one. Okay, for the time being, just wait. Okay. तो जो ओशन है, जैसे समुद्र है, उसके अंदर आप कुछ भी डाल दो, वो उसको रिजेक्ट नहीं करता, वो अपने अंदर समा लेता है. पर अगर आप उसकी लहरें देखो, वो बिल्कुल क्लीन होती हैं. वो अपनी लहरों से जो भी गंद है उसको बाहर फेंक देता है, और जो भारी चीजें हैं, जो चाहिए, वो सब अपने अंदर समा लेता है. नदियां सारी, नाले सारे समुद्र में चले जाते हैं. इट नेवर रिजेक्ट्स, बट कोई भी गंद को अपने अंदर नहीं रखता. मतलब अगर मैंने सच में सहा है, तो सहने के बाद, सहा मतलब क्या सहा? किसी का बैड बिहेवियर, कोई बैड सिचुएशन, मैंने उसको सहा, तो उसके साथ कनेक्टेड जो भी कोई नेगेटिव बातें हैं, मैंने संभाली. मतलब मैं उसकी बात नहीं करती हूँ. आई डोंट फाइंड इट इम्पोर्टेंट टू टेल एनीबडी अबाउट इट. पर मैं क्या करती हूँ, उनको
अपने अंदर नहीं रखती हूँ, उसके बारे में सोचती नहीं हूँ, सुनाती नहीं हूँ, इसका मतलब मैंने गंध को अपने अंदर जाने नहीं दिया, पर साथ में मैंने रिजेक्ट भी नहीं किया ना। कोई हमारे साथ बदतमीजी से बात करता है, हम अगर उसको रिएक्ट करते हैं मतलब मैं उसको वापस गंध देता हूं। हम रिएक्ट नहीं करते तो मीन्स आई एम रिस्पॉन्डिंग एंड आई गिव अ नाइस थॉट आउट रिस्पॉन्स टू दैट थिंग। अगर मैं थॉट आउट रिस्पॉन्स देती हूँ तो वो क्या चीज होती है, वो सेटल हो जाती है। नहीं तो तलवार से तलवार लड़ेगी तो फिर तो कुछ ऐसा ही होगा जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो और अगर हम जो गंदी बातें हैं जो हमारे साथ हो गई, जिसको हम कहते हैं मैंने सहन किया, जैसे एक जगह पे कोई दलदल होता है, उसके अंदर पानी डालते जाओ तो उस दलदल में क्या होता है, बदबू आ जाती है, स्टैग्नेंट वाटर, डर्टी वाटर। उसी तरह से डर्टी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, दूसरे के बारे में चिंतन करना, कोई कैसा है कोई कैसा नहीं है, ये सब क्या होता है, ये बदबू फैलाने वाली चीजें हैं। तो आत्मा में क्या है, गुण, शक्तियां। तो मुझ में वो शक्ति है उस चीज को टॉलरेट कर कर समाने की, और फिर भी अपने गुणों में टिक कर अपने हर संकल्प को क्रिएट करने की। जैसे आज पूजा बहन ने हमारे साथ क्या शेयर किया कि ठीक है, एवरीवन इज ऑन देयर ओन जर्नी, राइट। आपने ऐसा सोच लिया, आपने माफ भी कर दिया, फॉरगिवनेस भी आ गई, छोड़ दिया, और उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, माना आपने सह लिया, इट्स ओके। सबकी अपनी जर्नी, मेरे बोलने से भी वो कौन सा बदलने वाली है। अगर मैं देखूं बदलना किसको है, द ओनली पर्सन हु कैन चेंज इज मी, मेरे बोलने से, है ना। किसी और को हम बोलेंगे वो क्यों बदलेगा, वो तो बड़ा हैप्पी है जैसा भी है, उसको लगता है मेरा जो मैं कर रहा हूं वो बेस्ट है ना, वो तभी तो नहीं बदल रहा है। अगर उसको लगे ये मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो खुद भी उसके ऊपर एफर्ट करेगा ना बदलने की। जो कहते हैं ना, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो, हम यहाँ क्या कहते हैं, एक कान से सुनकर, सुन रहे हो उसको अंदर जाने ना दो। ऐसे नहीं सोचना, उसको अगर मेरी सोच में आ गया मतलब मेरे संकल्पों को पॉइजनस बना दिया, मेरे संकल्पों को दूषित कर दिया। जैसे एक पॉन्ड है, उसके अंदर अमृत पड़ा है, कहते हैं ना एक पॉन्ड है जिसमें अमृत है, माइथोलॉजिकल पॉन्ड। अब उस अमृत के अंदर आप हाफ अ ड्रॉप ऑफ आर्सेनिक डाल दो, पॉइजन डाल दो, वो अमृत रहेगा, वो अमृत तो नहीं बनेगा ना। तो मेरा मन और बुद्धि जिसके अंदर सिर्फ पावरफुल, ब्यूटीफुल, वर्चुअस थॉट्स हैं, उसके अंदर मैं वाइस से भरा हुआ इवन अ वेरी स्मॉल थॉट, तो मेरे अंदर की शक्ति को, मेरे अंदर के गुणों को अंदर पॉइजन फैला देता है। तो क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स हैं इस किस्म के, वो बहुत जल्दी फैलते हैं और बहुत स्पीड पकड़ लेते हैं, और वो अपनी गंदगी को बहुत जल्दी फैलाना शुरू कर देते हैं ना। और अभी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंज, व्हेन आई एम इन द प्रोसेस ऑफ चेंज, तो मेरे जो वो आदतें हैं रिएक्ट करने की, बोलने की, सुनाने की 10 लोगों को, तो सुनाते हैं मतलब गंध को फैलाते हैं। और अगर मैं गंध को फैलाती हूं, माना वो गंध फैलकर जो कमजोर आत्माओं तक पहुंचता है, वो कमजोर आत्माएं और कमजोर होती हैं और वो कमजोरी की और एक्शंस करती हैं। इसके लिए मैं हमेशा ये एक एग्जांपल देती हूँ जो मुझे, जैसे इट रियली जेल्स विद मी। जैसे हम सब बैठे हैं, ठीक है, वी आर 12 ऑफ अस, हम सब में शक्ति हमारे में कम हो गई है, राइट। हमारे में वो बिल्कुल हम पावर नहीं है, हम 100% नहीं है, पर फिर भी हमारे में इतनी शक्ति है कि हम अपने आप को संभाल लेते हैं और हम मुख से कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, हम सिविलाइज तरीके से रहते हैं। अब हमारे सबके सामने, सपोज वी आर ऑल सिटिंग इन अ रूम, और हमारे सामने एक बहुत कमजोर आत्मा आ जाती है, उसकी शक्ति बहुत ही कम है, और हम सब में मान लो 5% है नेगेटिव एनर्जी।
अब वो नेगेटिव एनर्जी हम सबकी मिलके उसको अटैक कर देती है, उसको अटैक करती है, उसकी शक्ति और कम हो जाती है, और वो क्या कहता है, तलवार उठा के कहता है मैं सबको मारने लगा हूं। दिस इज हाउ टेररिज्म इज क्रिएटेड। नेगेटिव संकल्प उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, उसको खुद को नहीं समझ आता मैं क्या कर रहा हूं। तो अगर कुछ नेगेटिव दुनिया में हो रहा है, हम सब का उसमें दान है। We have all added to that. We have all perpetuated in some way. How? With some negative thought that we might have created. तो हमने इस करेक्शन को करना है, इस संकल्प में नहीं चले जाना, ओ अब मैंने इतना कुछ कर दिया, मैंने इतनी सारी बातें कर दी, नहीं। Now I know how to change myself, and now I will do that. When I focus on myself, I'm able to do it. Everything is a thought away. तो अगर हमें इस तरह का लाइक द ओशन को क्या कहते हैं, ओशन कितना गहरा है, डीप, डेप्थ से हम ओशन को कहते हैं, विशालता से हम उसको कंपेयर करते हैं। तो अगर मुझे समाने की शक्ति चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए लार्ज हार्ट, हृदय की विशालता, कि कोई कैसा है इट्स ओके, उसका संस्कार बना हुआ है, he is unable to help himself, doesn't matter, है ना। मुझे अपने संस्कारों को देखना है, मेरा फोकस अपने ऊपर आ जाए, और हमको थोड़ा सा सीरियसनेस चाहिए। सीरियसनेस ऑफ व्हाट, कि मुझे ये करना है, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू चेंज। एंड व्हाई डू आई हैव टू चेंज? बिकॉज दैट गिव्स मी हैप्पीनेस। दूसरे के लिए आप छोड़ दो, मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं, मैं अपने आप को पहले ठीक कर लूं। मेरे पास स्टॉक होगा तो मैं दे सकूंगी, मेरे पास स्टॉक ही नहीं होगा तो मैं दूंगी क्या, है ना। जैसे ये पावर टू अकोमोडेट हम कहेंगे, जैसे पावर टू एडजस्ट। जैसे आपके घर में सपोज आपका अपना बच्चा, सपोज आप अपने घर आते हो, ओके लेट्स टेक इट लाइक दिस, और आपके घर का फर्नीचर जो भी पड़ा हुआ है ना, जहां बेड है वहां चेयर रख दी, जहां चेयर है वहां बेड रख दिया, जहां डाइनिंग टेबल है वहां सोफा सेट रख दिया, कोई बिल्कुल ऊपर नीचे चेंज कर दे। आप आके बोलो, आपको गुस्सा आएगा थोड़ा सा कि व्हाट इज दिस, राइट। पर अब आपकी बेटी कहे मम्मी ऐसे कितना अच्छा लग रहा है ना, इमीडिएटली आपके अंदर थॉट आएगा हाँ शायद ऐसे ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के लिए प्रेम है, उस बच्चे को हम हर चीज के लिए माफ करने का, हम उसकी इंटेंशन को देखकर एकदम हैप्पी हो जाते हैं। तो वो वाली मेरी इंटेंशन जब सबके लिए होगी, तब कहेंगे हृदय की विशालता। एक दो शब्द हमारे साथ ना इस ज्ञान में लगते हैं, ऑलवेज एंड फॉर एवरीवन। हद से बेहद में जाना, एंड सदा, कभी कभी नहीं। जब ये दो शब्द मैं उनको अपने लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करती हूँ, देन माय लाइफ चेंजेस। तो हमने what do we want? We want happiness in our life and we are in the process of doing that. ठीक है। और फिर ये सारी शक्तियों को हम यूज कर सकते हैं, एक टाइम पे दो शक्तियों को भी यूज कर सकते हैं। बट नाउ व्हेन यू हियरिंग ऑल दिस, व्हेन यू मल ओवर इट, देन यू नो हम इसको कैसे यूज करें। और जब हम रोज मुरली सुनते हैं ना, उसमें रोज किसी ना किसी चीज की बात होती है, और उसी एक चीज को लेकर हम उसको दिन भर यूज करते रहते हैं, तो एक लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज का अनुभव होता है ना। फिर है परखने की शक्ति। तो परखने की शक्ति कैसे? जैसे इसका, आई थिंक आई हैव टेकन आउट द पिक्चर, लेट मी जस्ट चेक। जैसे एक ज्वेलर होता है ना, कैन यू सी द पिक्चर? Yeah, Didi, we can see that. तो जो ज्वेलर होता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रत्नों को टेस्ट करता है कि उनकी प्योरिटी का लेवल कितना है, डायमंड की प्योरिटी को देखता है ना, परखता है। इट्स द पावर टू डिसर्न, राइट। पिक्चर इसलिए इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ इमेज व्हिच यू डोंट फॉरगेट, है ना। तो परखता है, फिर डिसाइड करता है कि इसकी वैल्यू क्या है ना। तो हम भी लाइफ में हमारे को डेली बेसिस पर इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स हमारे को परखना पड़ता है
डिसर्न करना पड़ता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। आपका ऑफिस है, बच्चे हैं, कौन से, जैसे बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है, बच्चे को सपोज कोई बीमारी आ गई तो कौन से डॉक्टर के पास ले जाना है, कौन से केमिस्ट को मैं फोन करूं, अभी पैंडेमिक है तो मैं Amazon को यूज करूं कि ग्रोफर को यूज करूं। वी आर कॉन्स्टेंटली हम परख रहे हैं कौन सी वाली चीज मेरे लिए अप्रोप्रिएट है। तो इस जब हम योग करते हैं तो ये सारी शक्तियां हमारे अंदर ऑटोमेटिक इमर्ज होनी शुरू होती हैं, और जब हम अवेयर होकर उनको यूज करते हैं तो फिर, और ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको याद रखते हैं ना, तो यूज करने की शक्ति भी आ जाती है, समझ आ जाती है। ज्ञान क्या है? समझ है ना, फिर समझ को हम अप्लाई करते हैं, राइट। जैसे हम मैथ में बॉटमस के सम्स करते थे तो समझ आ गई, पहले किस चीज को करना है, पहले ब्रैकेट को खोलना है, फिर ऑफ को करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करा ना हमने, समझ आ गई, फिर उसको अप्लाई करा है। तो अब परखने की शक्ति के लिए हमारी माइथोलॉजी में, हमारी बुक्स में, शास्त्रों में सीता का एग्जाम्पल है। सीता ने पहले क्या, सोने का हिरण देखा, सोने के हिरण को नहीं परखा कि जंगल में सोने का हिरण कहां से आया, तो राम को वहां भेज दिया, है ना। फिर मारीच ने आवाज लगाई, उसको नहीं पहचाना, लक्ष्मण को भेज दिया। फिर लक्ष्मण रेखा लगाई गई उसके लिए, साधु को नहीं पहचाना, तो फिर क्योंकि वो परख नहीं पाई, राइट, शी कुडंट डिसर्न कौन सी चीज राइट है, कौन सी चीज रॉन्ग है। तो परख ना सकने के लिए फिर क्या हुआ, वो फंस गई। हम भी जब परख नहीं सकते, हमने सपोज अपने घर में कोई हेल्प को ही एम्प्लॉय करना है, तो परखना पड़ता है ना, ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये मेरा काम करवाएगा कि नहीं। ये तो हमारे डेली छोटी छोटी चीजों में हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है। तो परखने की शक्ति के लिए हमारे को क्या चाहिए, माइंड शुड बी क्लीन एंड क्लियर, बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी, सच्चाई सफाई जिसको कहते हैं। सच्चाई सफाई मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मन में बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हम सोच रहे हैं, और हमारे को कोई आकर कुछ पूछता है, आपकी हेल्प ही आके पूछती है कि रात को मैडम मैं ये बना दूं, और आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, आप सोचे बना कहते हो ओके इट्स ओके, बना दे भाई, मेरे को ये पता नहीं क्या क्या चीजों से डील करना है, ऑफिस का भी काम आ रहा है, ये देखो बच्चा भी तंग कर रहा है, ये फलाना फोन भी आ रहा है, उधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, हम ऐसे ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं, और वो जो भी कुछ कर लेती है, फिर आप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठते हो और कहते हो ओ माय गॉड, ये तो किसी को पसंद ही नहीं है खाना, मैंने खुद ने हाँ बोला, शायद याद भी नहीं रहता मैंने हाँ बोला, क्या हुआ, बुद्धि क्लीन एंड क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि संकल्प बहुत फास्ट चल रहे हैं, और फास्ट चलने वाले संकल्प कौन से होते हैं, दे हैव टू बी नेगेटिव और वेस्ट, है ना। हम सब शायद नेगेटिव संकल्पों को अवॉइड कर लेते होंगे, पर वेस्ट माना पास्ट की बातें, फ्यूचर की चिंता, दूसरों को जज करते करते सोचना, उनको लेबल्स वो एंग्री वाला है, वो बहुत जेलस वाला है, ये सारे कामों में जब हम लग जाते हैं तो फिर बहुत सारी हमारे जो बुद्धि है वो क्लीन एंड क्लियर नहीं होती। तो जिसके लिए हमारे को भगवान एग्जाम्पल देते हैं कि जो बुद्धि है सोने का बर्तन है, तो शेरनी का दूध, सेइंग है, मतलब उसको लिटरली नहीं लेने, शेरनी का दूध जो है सोने के बर्तन में टिकता है, मतलब पावरफुल। तो जो पावरफुल ज्ञान है, पावरफुल संकल्प है, वो क्लीन क्लियर पावरफुल बुद्धि में ही टिकेंगे, नहीं तो फिर वो टिकते नहीं है। सोचना चाहते हैं कर नहीं पाते। जब तक इस गंध को नहीं निकाला तब तक हमारी परखने की शक्ति में गड़बड़ हो जाएगी। जैसे खिड़की है, खिड़की का काम क्या है, हमें बाहर के दृश्य को दिखाना, उसके सामने पर्दा लगा है, साथ में फॉग भी आई हुई है, हमें तो दिख नहीं रहा, पर्दा लगा है, हम डिसीजन लेते हैं चलो बाहर चले, देख ही नहीं रहे वेदर क्या है, चल पड़े बारिश है तूफान है, हम नहीं देख रहे। आप पर्दा हटाया, फॉग को साफ किया, क्लियर दिख रहा है बारिश है, मुझे छाता लेके जाना चाहिए, हाउ डू आई
cover up with for all the things that are going on around me, मेरे को क्या करना चाहिए, तब मैं परखती हूँ और तब मैं अपने लिए छाता लेकर जाती हूँ। तो मेरा छाता क्या है? क्लीन एंड क्लियर बुद्धि, क्लीन एंड क्लियर इंटेंशंस, समझ, ज्ञान की समझ को अप्लाई करना, माना मेरी बुद्धि जो है वो इन्फ्लुएंस से फ्री हो। हमारी बुद्धि पर क्या क्या इन्फ्लुएंस आ जाते हैं? किस चीज से हम इन्फ्लुएंस होते हैं? I'll give you one example. I don't like this person at all. ये है इन्फ्लुएंस। और मुझे ये वाला बहुत पसंद है, इससे बात करे बिना तो मेरा दिन शुरू भी नहीं होता। कोई बात होगी, मुझे इसको बताना ही बताना है, मीन्स आई एम टोटली इन्फ्लुएंस्ड। या मेरे बच्चे ने कुछ बोल दिया, मुझे करना ही करना है, मोह है। आई कैन नॉट डिसाइड बिकॉज इतना मोह है, उसने बोला तो मेरे को ये करना ही करना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, इट्स अ स्मॉल एग्जाम्पल, I find it very funny. There's a friend of mine. She said, मैं इस ड्राई क्लीनर के पास नहीं जाने वाली। क्यों? बिकॉज मेरी बेटी कहती है उसने मेरे स्वेटर का बटन तोड़ दिया था, स्वेटर को ड्राई क्लीन करते थे। हेलो, यू बीन गोइंग टू हिम फॉर 20 years, एक बटन टूट के सुखी। व्हाट आई मीन टू से इज कितना इन्फ्लुएंस है मोह का, कितना हमें ओवर पावर कर जाता है ना। ऐसे ही हमारे को लोग और परिस्थितियां ओवर पार करते हैं। जब आप कहते हैं ना कोई चीज यू आर वेरी ओवरवेल्म्ड, हमारे ऊपर कोई चीज हावी हो जाती है ना। हावी कैसे होता है? देखो, जैसे हमारे सपोज हमारे घर में रात के 2 बजे किसी को जैसे लाइक माय मदर इन लॉ, उनको हार्ट अटैक हुआ, बहुत पेन हुई, उनका फोन आया 2 बजे, मैं बहुत पेन में हूँ, हाँ बड़ा तबड़ी मचा दी मैंने खुद ने। मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्या करें, कैसे करें? ओ अरे इट्स ओके, हमें पता है क्या करना है, जस्ट थिंक। बल्कि वो ठीक थे, उनको पता था कौन सी दवाई लेनी है, उन्होंने मुंह में दवाई डाली, फिर हॉस्पिटल फोन किया, वो भी व्हाटएवर एक्शन हैड टू बी टेकन वी टुक। पर अपने मन में वो हलचल मचा देंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक बीमार के साथ हम खुद भी बीमार हो जाएंगे तो दूसरे की हम मदद नहीं कर पाएंगे। और जितना हमारी परख शक्ति अच्छी होगी, उतना हम निर्णय, डिसीजन को सही ले पाएंगे। तो अगली शक्ति हमारी है निर्णय लेने की शक्ति। तो भगवान कहते हैं ना, कृष्ण को हम भगवान ही कहते हैं ना, तो उन्होंने अर्जुन को 18 अध्याय पढ़ाए, तो उसने क्या बोला? हाँ, अब मैं वार कर सकता हूं, अब मुझे समझ आ गया। क्योंकि उसने उस समय फिर मोह को नष्ट किया, मोह को समाप्त किया। जो मेरे भाई है, मेरा ये है, मेरा अपना है ना। ठीक है, तो ये हुआ परखने की शक्ति। नेक्स्ट हमारी शक्ति है निर्णय लेने की शक्ति, हाउ पावर टू डिसाइड। जब कोई भी डिसीजन लेना होता है, just I'll show you another picture. जो बैलेंस होता है ना, जो उसका फलक्रम है, जो फलक्रम है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। वो इसको हम हिंदी में कांटा बोलते हैं। ये जरा सा इधर उधर हुआ, जरा सा हिला, तो जो मेजरमेंट में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। ठीक है ना। तो ये कांटा किस चीज को बताता है? कांटा मीन्स हमारा फोकस। जिस बात का डिसीजन लेना है, हमारा उस पर फोकस हो। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया, मेड आकर आपसे कुछ पूछ रही है, आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, उस पर फोकस ही नहीं है, तो आप उसको एक छोटी सी चीज का भी जवाब नहीं दे पाते। और इसका एक और एग्जाम्पल, आप कुछ लेना चाहते हो, जाके अलमारी खोलते हो, भूल जाते हो, फोकस तो है नहीं। जब आपने सोचा और जब तक आप कबर्ड के सामने पहुंचे, आपने अनेक और वेस्ट संकल्पों को क्रिएट कर लिया, तो भूल गए कि वहां से क्या लेना था, है ना, बिकॉज देयर वाज नो फोकस। सो और दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखो, जिसने तीर मारना होता है, जो धनुष बाण होता था,
उसमें अंगूठे की कितनी इंपॉर्टेंस है ना, अंगूठा कहाँ पे टिका है, और फिर मैंने जो मैं जिस जगह मैं टारगेट कर रही हूँ मेरा फोकस वहां है कि नहीं, है ना। दोनों की स्थिरता, अंगूठे की स्थिरता और हमारी आईज की जो फोकस है, एकाग्रता की मैंने कहा क्या करना है, जब वो फोकस होता है तो वो तीर एक्यूरेट जगह पर जाकर लगता है ना। हमने जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल कई बार हम परख लेते हैं, निर्णय भी ले लेते हैं, पर निर्णय को अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम दो लोग हैं, ठीक है, हम दो लोग बैठे हैं और हम जा रहे हैं, सामने से एक तीसरा आना शुरू हो जाता है, सामने से मेरे को पता है, मैं आपको बोलती हूँ ये जो है ना, ये मेरा दोस्त है, ये ना बहुत आर्ग्यूमेंट में पड़ता है, इसके साथ ज्यादा आर्ग्यूमेंट में मत पड़ना, ज्यादा बोलना मत, नहीं तो फालतू की ना वो नेगेटिव कॉन्वर्सेशन हो जाएगी और एक बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। मैंने आपको तो बता दिया, वो आया, परखा हुआ है कि ऐसे होता है, फिर भी मैं उसके साथ एक आर्ग्यूमेंट में पड़ जाती हूँ, बोलना शुरू कर देती हूँ। वो कुछ बोलता है, मेरे को वो बात ट्रिगर करती है, मैं उसको जवाब देना शुरू कर देती हूँ। एंड रिजल्ट क्या होता है, एक बहुत नेगेटिव एनर्जी आपस में क्रिएट हो जाती है और हम सब अपने अपने रास्ते जाते हैं। इतने अच्छे से हम इंजॉय करके चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अच्छे से समय चल रहा है, परखा पर निर्णय लेकर उसको अप्लाई नहीं किया। तो हम जो परखते हैं उसको हमको अप्लाई करना मीन्स उस पर फोकस रहना कि मुझको ये अब करना ही है ना। और जितना निर्णय हमारा सही होता है उतना बैलेंस मेरी लाइफ में रहता है ना, स्टेबिलिटी उससे क्रिएट होती है। और जैसे हमने पहले लेसन में भी किया था, जितना हम बुद्धि की सुनते हैं, जितना बुद्धि की विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होती है और बुद्धि जो डिसाइड करती है, जब हम फोकस्ड होते हैं हमारी बुद्धि बिल्कुल करेक्ट हमारे को डिसीजन देती है। हम उतना जितना उसको अप्लाई करते हैं उतना हमें सुख मिलता है, सुकून मिलता है और हमारा डिसीजन उतना एक्यूरेट होता है। कई बार हमें जैसे पता भी होता है ऐसे नहीं करना, हम फिर भी कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने स्पाउस के साथ हमारे ट्रिगर्स होते हैं, किसी एक बात पर, बच्चे की किसी बात को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं, हर बारी वो बोलते हैं, हर बारी हम अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि मैं राइट और तुम रॉन्ग। और अगर देखा जाए जब हम किसी के लिए भी किसी को रॉन्ग प्रूव करना चाहते हैं तो वो हमें एक्सेप्ट करेगा, तो हम ये कर लेते हैं, है ना। पर और फिर अभी हमको समझ भी आ गई, हम फिर भी कर लेते हैं, ये बात है। तो उसको हमें अप्लाई करना है, तो इसके लिए मन की एकाग्रता चाहिए। और कौन सी चीज है जो हमें करने नहीं देती? ईगो, अहंकार। जब रावण धराशाही हो गया तो राम ने लक्ष्मण को बोला कि वो बहुत ज्ञानी है, उससे जाकर पूछो आपने अपने जीवन में जो विजडम पाई मुझे बताओ। आपने शायद ये स्टोरी सुनी भी होगी रामायण की। तो लक्ष्मण तो थोड़ा अहंकार तो उसमें दिखाया गया है ना हमारे शास्त्रों में। तो लक्ष्मण उसके सिर के पास जाके खड़ा हो गया, उसने रावण से पूछा बताओ जो बताना है, आपके जो जीवन का जो भी आपने चीज सीखी। तो रावण कुछ नहीं बोलता, वो चुप रहता है। राम को जाके बोलता वो कुछ नहीं बता रहा है, मतलब उसका एटीट्यूड ये था ये क्या बताएगा, तो रावण है। तो राम ने बोला आप कहाँ खड़े हुए थे? कहते मैं सिर के पास खड़ा हुआ था। कहते उसके पैरों पर खड़े हो और नम्रता से उससे पूछो। फिर उसने आंसर दिया, जब आपके हितैषी आपको कोई बात बता रहे होते हैं, कोई समझ दे रहे होते हैं, अहंकार में ना आकर उसको उस समझ को लेना चाहिए। तो रावण ने भी बताया कि अहंकार के कारण वो हारा। लक्ष्मण को भी एडवाइस इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो अहंकार में खड़ा था। तो ईगो का क्लैश जब होता है तो ये सारी बातें होती हैं। हमें ये चेकिंग करनी है। हमारी जो चेकिंग है ना, हम ये देखें हम कितनी बार अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं।
आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। व्हेन आई ट्राई टू से आई एम राइट, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ तुम तो बिल्कुल रॉन्ग हो, मैं ही राइट हूँ, और तभी आर्ग्यूमेंट होती है। अगर आप दूसरे की बात को, अपनी बात को कहकर दूसरे की बात को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो हमारी बात सुनने के लिए थोड़ा जेंटल, सॉफ्ट हो जाते हैं। आप इसको अप्लाई करके देखना, बहुत सक्सेस मिलती है। छोटी छोटी बातों में पहले करना, बड़ी बड़ी बातों को पहले नहीं लेना। जब छोटी बातों में हम सक्सेस हमें मिलती है, तो बड़ी बातें फिर ऑटोमेटिकली फिर हमारी आदत हो जाती है ऐसे करने की, है ना। हम किसी को यू आर रॉन्ग कर अलग अलग तरीकों से सिद्ध करने में रहते हैं ना रेडी, कि मैं ही राइट हूं। और अगर आप राइट हो भी, सबसे बड़ी बात, अगर हम राइट हैं तो एंड में हमारी सक्सेस होगी। फिर अगली शक्ति है सामना करने की शक्ति, द पावर टू फेस। नाम थोड़ा सा सहन करने की शक्ति और सामना करने की शक्ति दोनों थोड़े कॉन्ट्रडिक्टरी लगते हैं। तो सामना, फेस किस चीज को करना है और सहना किस चीज को है, इस चीज को हमें समझना। तो सहन हम करेंगे व्यक्तियों को, उनके व्यवहार को, और सामना हम करेंगे सिचुएशन का। फॉर इंस्टेंस, जब याद है वो नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था, बड़ा भारी अर्थक्वेक, यहाँ पे भी धरती हिल गई थी, उस टाइम पे जो एडवाइजरी है कि आपको क्या करना चाहिए उस परिस्थिति को फेस करने के लिए, आप वो करो। पैंडेमिक में हमें बताया गया क्या करना है, हम वो करेंगे, उसको फेस करेंगे, स्टेबल रहेंगे। अब वो हो तो रहा है, हमारे हलचल में आने से भी वो ठीक तो नहीं होगा, स्टेबल रहकर उसको फेस करना। पर किसी व्यक्ति को का सामना करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएंगे, राइट। रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो, अपनी ही शक्ति हमारी कम हो जाएगी। दूसरा, कहीं हमारे प्रिंसिपल्स की बात है तो हम उस प्रिंसिपल्स को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उसके लिए हम फेस करेंगे। कोई कहे झूठ बोल दो, थोड़ा सी करप्शन से कुछ नहीं होता, 2-4 पैसे एक्स्ट्रा बन जाएंगे, उसको नीचे गिरा दे तो ऊपर चढ़ जाएगा। हम अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पर कहीं पे पसंद की बात है, जैसे फॉर इंस्टेंस हम सब एज फैमिली कहीं हॉलिडे पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, आप कहते हो यहाँ जाना है, दूसरा कहता है वहां जाना है, वो मान लो दूसरे की बात, वो तो पसंद की बात है ना। जहां पसंदी की बात है सहन कर लो, इट्स ओके। वो कहता मोती महल जाना है, बच्चा कहता मम्मी मैकडोनल्ड खाना है, आप उसमें आपको बोलो ठीक है, जो दूसरे की पसंद हम उसमें राजी हैं, इट डजंट मैटर टू मी। और जब हम दूसरे की को ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो फिर दूसरा भी हमारी बात को सुनने के लिए रेडी हो जाता है। तो सामना करने की शक्ति, मैं आपको एक और पिक्चर दिखाना चाह रही थी। इसके भी 1 मिनट। अभी निकाला था मैंने, हाँ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कि कोई अर्थी को लेकर जा रहा है ना, और जो योगी है उसके सिर पर जो है तूफान आ रहा है, इस तरह का इंसिडेंट भी हो गया है। मीन्स जो परिस्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है। परिस्थितियां जो हैं दे आर नॉट समथिंग आई लाइक। और पर योगी कैसा है, चल रहा है, स्टेबल है, दिया उसका जला हुआ है, उसका दिया जो है वो बुझा नहीं है। Now I'll just stop sharing. Now we'll talk. ठीक है ना। तो जब इसका मतलब जब परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, मीन्स दे आर नॉट इन माय फेवर। सबसे बड़ी परिस्थिति हम किस चीज को मानते हैं, व्हेन वी लूज अ लव्ड वन।
मीन्स कोई अपना शरीर छोड़ देता है, he goes on another journey in another body, तब हम उस परिस्थिति को बड़ा मानते हैं, उससे हमारे अंदर एक तूफान आ जाता है। पर अगर मैं योगी हूँ, मैं योग करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, परमात्मा से कनेक्ट होती हूँ, अपनी इस दिए को, ये लाइट जो है माथे के बीच जो मैं चमकता सितारा हूँ, इस स्थिति में स्थित होती हूँ, अपने गुणों में स्थित होती हूँ, तो मेरी ये लाइट वर्च्यूज की जब चली रहती है तो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी मैं स्टेबल होने की शक्ति को इमर्ज रूप में रखती हूँ। Am I clear here? मैं समझती हूँ कि जीवन यात्रा है, जीवन में ये सब होता है ना। ज्ञान की समझ का दीपक जलाए रखना, इसलिए वो योगी के साथ दीपक को जला हुआ दिखाया है ना। तो द पावर टू फेस मीन्स हम किसी भी सिचुएशन में अपने वर्चुअल्स पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाकर रखें, है ना। हम अपने सत्य स्वरूप में, जब मैं आत्मा, इसमें टिककर हर सिचुएशन से डील करें, वो है फेस करने की शक्ति। कोई क्वेश्चंस आते जाएं तो आप पूछ सकते हैं। फिर अगली शक्ति हमारी है सहयोग देने की शक्ति, एक दूसरे का साथ देना। इस पर भी मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। Okay, can you see the picture? The power to cooperate. Yes. पहाड़ दिखा रहे हैं और सबने उंगली अपनी दी हुई है तो पहाड़ उठ गया, है ना। ये इसका ये एग्जाम्पल जो है, ये किसमें हमारे उसमें शास्त्रों में आता है ना। Just a moment. हमारे शास्त्र में आता है ना, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, गोवर्धन पर्वत ना, उसमें सबने साथ दिया। तो सहयोग देना, लोगों के साथ कोऑपरेट करना, उनकी मदद करना, इसको हम क्या कहते हैं? ये दैवी लक्षण है, देवताओं के लक्षण है। देना और सहयोग देना और सहयोग लेना। कई बार सहयोग लेने में भी हमारे को ईगो आ जाती है कि मैंने किसी से मदद नहीं लेनी। तो देना लेना दोनों दैवी लक्षण है। जब हम सब मिलकर कोई भी चीज को चेंज करना चाहते हैं, सपोज वी सिट टुगेदर एंड डिसाइड टू डू समथिंग एंड वी ऑल वर्क इन द सेम डायरेक्शन, तो वो चीज में हमें सक्सेस मिल जाती है, अकेले शायद ना मिले, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि राजा इंद्र राजा, उसने दावत बुलाई और उसने दावत पे देवताओं को और असुरों को, दोनों को बुलाया। असुरों ने बोला कोई ना कोई हमारे साथ गड़बड़ करनी होगी, तभी बुलाया। तो उन्होंने असुरों को एक कमरे में रखा और देवताओं को एक कमरे में रखा। कंडीशन थी खाना खाने की कि जो बाजू है उसको मोड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट बेंड योर एल्बो एंड ईट। तो असुरों को तो गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा हमें पता ही था, ये तो हमारे को कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए ही बुला रहे हैं। तो असुरों के कमरे में लड़ाई झगड़ा, खाना फैल गया, कोई कुछ खा नहीं सका। और देवताओं ने क्या किया, सब एक दूसरे के सामने बैठ गए, एक दूसरे को सामने खिलाने लगे। क्या हुआ? देवता है ना, दैवी लक्षण है ना, संकल्प क्या है? मुझे पहले दूसरे को खिलाकर फिर खुद खाना है। इतने श्रेष्ठ संकल्प को जो रखता है, मतलब उसके अंदर अंतर मन की उसकी स्टेबिलिटी है, उसके वर्च्यूज इमर्ज रूप में है, उसको कोई जल्दी नहीं पड़ी हुई खाना खाने की। इसके लिए भी प्रेम चाहिए, है ना। जो घृणा की भावना, पहले मैं, वो सारी चीज में हमको नहीं जाना। जैसे लॉकडाउन के समय में, फर्स्ट लॉकडाउन जो हुआ था, सब एक दूसरे की मदद उस टाइम कर रहे थे ना, उससे सहयोग मिला था ना, कहीं मिला था, कहीं किसी को नहीं भी मिला होगा। पर जब भी हम किसी की मदद करने के लिए रेडी होते हैं, तो माना हमारे में वो देवताई लक्षण है, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम इजी हो जाता है।
है ना। तो अब हम सब क्या कर रहे हैं, जब हम सब मेडिटेशन सीख रहे हैं, मेडिटेशन का अनुभव कर रहे हैं, पॉजिटिव संकल्पों में, एलिवेटेड संकल्पों में हम सब जब इकट्ठे बैठते हैं, खासकर जब हम कलेक्टिवली करते हैं, तो ये कलयुगी का जो पर्वत है, कलयुग का पर्वत मीन्स माउंटेन ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट सिचुएशन जो आज की डेट में है, आज की परिस्थिति में है, इसको हम उठाकर रिमूव कर देंगे। सब अपनी अपनी उंगली देते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं समाप्त हो जाती हैं। इसके लिए मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ, शायद आपने सुनी होगी कि एक ना, ये व्हाट्सएप पे बड़ी आती हैं स्टोरीज। वन ग्रैंडफादर वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो उसपे वर्ल्ड मैप था, उनका पोता उनके पास बैठा था, तो हवा आई तो न्यूज़पेपर को उठा के ले गई, तो एक झाड़ी में फंस गया, वो पेपर फट गया। तो जो दादाजी थे उन्होंने उस पेपर को ना जोड़ने की कोशिश की, उनसे जुड़ नहीं रहा था। तो बच्चा बोलता है, दादाजी मैं कर देता हूँ। उसने फटाफट 2 मिनट में कर दिया। तो दादाजी ने बोले, ये तूने कैसे किया? कहते हैं, इसके पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैंने उसको ध्यान से देखा तो मैंने उसको जोड़ दिया। मतलब एक व्यक्ति खुद को बदलना इजी है, पूरी दुनिया को बदलने जाएंगे, पूरी दुनिया बदल जाए, टीवी पे बैठकर हम सारी चीजों को डिस्कशन कर लें, नेट रिजल्ट नहीं आएगा। I change my little world and the world will change. मैं अपना सहयोग देने के लिए रेडी रहूं, खुद पर फोकस करूं। ठीक है, अभी 2 शक्तियां और बची हैं, आप सबके पास टाइम है तो मैं आज कंप्लीट कर देती हूँ, नहीं तो कल कर दूंगी। Are you all ready to sit another 10 minutes? Okay. तो एक बार फोकस बन जाता है ना, तो उसको हटा दो तो फिर वो बात नहीं रहती। तो फिर है समेटने की शक्ति, द पावर टू विथड्रॉ विद इन। तो इसके लिए हम कछुए का एग्जाम्पल देते हैं। तो कछुआ क्या करता है, उसका शेल जो है बहुत हार्ड होता है, अंदर उसका बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है। तो जब भी वो डेंजर को देखता है तो अपने आप को उस शेल के अंदर समेट लेता है, तो वो डेंजर से बच जाता है। नहीं तो उसके सॉफ्ट बॉडी को कोई भी जानवर अटैक कर सकता है। बारिश आई, वो अपने अंदर घुस जाता है। कोई जानवर आया खाने के लिए, वो अपने शेल में घुस जाता है, जानवर को पता ही नहीं चलता कि वो है। तो कछुए का एग्जाम्पल हमारे को क्या कौन सा एग्जाम्पल बताता है? अंतर्मुखी होना, टू गो विद इन। जब भी कोई सिचुएशन हो, इफ आई गो विद इन, आई कनेक्ट विद माई सेल्फ, मी द सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो सिचुएशन जो है उसको मैं शांति से डील कर पाती हूँ। पर मैं बाहर की दुनिया के साथ अटैच हो जाती हूँ। वो कैसे कर रहे हैं? बाहर की बातें बहुत ही डिफिकल्ट नजर आ रही हैं, डिफिकल्ट से कनेक्ट होंगे तो डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। अपने अंदर की शांति से कनेक्ट होंगे तो वो सारी बात जो है वो खत्म हो जाएगी, है ना। और कछुआ का जो एग्जाम्पल है, हम कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कितना भी वो स्लो चलता है, उसको पता है उसने कहाँ जाना है, उसको पता है उसने कैसे जाना है, वो अपने जीवन से संतुष्ट है। उसको वो जब देखता है डेंजर, वो अपने अंदर घुस जाता है। तो इसलिए इसकी क्या चीजें हैं, इससे हमें फायदा क्या होता है? जब हम अपने अंदर जाते हैं हमारे को रेस्ट अनुभव होता है। just 2-3 seconds, just go within, see yourself that point of light. कुछ नहीं, मैं ज्योति बिंदु से था, मैं शांत स्वरूप आत्मा। Just create this thought and see yourself as point. ठीक है, सबने किया? Just for these few seconds, not even 1 minute. इतने सेकंड में कुछ अनुभव तो हुआ होगा, राइट? इतना भी हम कर लेते हैं, जब परिस्थिति हमारे सामने है हम कहते हैं हम अंदर जाके अपने बैठ जाएं। ऐसे नहीं हम अंदर जाके बैठ गए और बैठ गए वहां पे, वी आर सेटल्ड देयर फॉरएवर। नो, वी जस्ट डू इट फॉर अ फ्यू सेकंड्स, कनेक्ट विद माय सेल्फ। एंड इससे क्या होता है? एनर्जी मिलती है, रेस्ट मिलता है, हम सेफ हो जाते हैं, बाहर की बातों में उलझते नहीं हैं और दूसरी बातों के इन्फ्लुएंस में भी नहीं आते, है ना। और हम डिटैच होकर फिर एक डिसीजन ले पाते हैं।
जब डिटैच होकर डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन अच्छा होगा। जैसे आपके पास कोई आपके दोस्त आता है, वो आपको बोलता है मेरी ये प्रॉब्लम है, बता क्या करूं, आप उसको बड़ा अच्छा पावरफुल डिसीजन दे देते हो और वो भी कहता है आपने बहुत अच्छा बताया, मैं तो उसको, मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो ही परिस्थिति अपने पास आ जाती है, आई एम नॉट एबल टू डू नथिंग। क्यों? बिकॉज आई एम अटैच्ड टू दैट सिचुएशन। बट दिस मेथड मीन्स मैं आई एम कंप्लीट, मैं अपने आप के लिए परिपूर्ण हूं। मैं अपने आप के अंदर जाके अपने आप को अपनी बुद्धि को क्लियर करके शांति में बैठकर, शांति में 1-2 सेकंड की भी शांति हमारे को बहुत पावरफुल बना देती है। मैं इस पे हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा बेटा डजंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। मुझे उसने बोला कि मुझे ज्ञान दो 15 मिनट्स, नॉट अ सेकेंड मोर। आई सेड ओके। एनीवे ही सैट फॉर 1 आवर। जो आप रोज कर रहे हो उसको 1 घंटे में सारा बता दिया। उसने करना क्या शुरू किया, ऑफिस में कोई ना कोई सिचुएशन होती है, एवरीबडीज, सम पीपल आर वर्किंग विद यू, फॉर यू, सम पीपल डू थिंग्स विच मेक यू अपसेट, एंग्री, डिस्टर्ब। वो कहता है मैं जब डिस्टर्ब होता हूँ तो he goes within. Sometimes he leaves that place and he goes to his room, says I connect with myself for a few seconds and I go out. I am in a better position. I feel my response has changed. I'm not reacting negatively. Now this is a young boy who is doing this. अगर वो कर सकता है तो हम सब भी कर सकते हैं, है ना? तो I am not saying that he is very great. जो भी करता है सभी कर सकते हैं। इट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट अप्लाइज टू एवरीबडी। ऐसा बच्चा, ऐसी आत्मा जो इन चीजों में ज्यादा पढ़ती नहीं है, जो इस चीज को ज्यादा करती नहीं है, उसको मिल रहा है। और आप सब तो अच्छे से ज्ञान को समझ कर रहे हो, तो आप तो कर ही सकते हो। तो जैसे हम क्वेश्चन पेपर देखकर डिस्टर्ब हो जाते हैं और कहते हैं मुझे ये आंसर नहीं आता, तो जो आता है वो भी भूल जाते हैं। पर अगर हम सोचें ठीक है मेरे को जितना आता है मैं उतना तो कर लूं, तो हम उसमें पास हो जाते हैं, हम सफल होते हैं। तो आंसर शीट में हम जो लिखेंगे हमें उसका मिलेगा ना। हमें अंदर पड़ा था पर हमने उसको यूज ही नहीं किया, तब तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर इसकी नेक्स्ट पावर जो है, मैंने टॉर्टोइज को नहीं दिखाया, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कैन विजुअलाइज अ टॉर्टोइज, राइट? फिर समेटने की शक्ति, it is the power to pack up. Mana, I'll show you a picture, although I'm sure you. ठीक है, जो सूटकेस होता है हम उसको पैक करते हैं, ठीक है, और हम सूटकेस में जब कहीं जाने लगे हैं तो क्या करते हैं, क्या डालते हैं इसमें? What will we put in a suitcase? Only what is necessary. 1. उसके बाद जगह है तो हम कोई आलतू फालतू डाल सकते हैं, राइट? We travel light क्योंकि सामान खुद उठाना पड़ेगा। And if we are traveling by air, there are limitations. और फिर हम जहां जाते हैं वहां पर भी अपनी चीजों को फैलाते नहीं, वहां पे भी हम सूटकेस के अंदर बंद करके रखते हैं। हमें कितना भी बड़ा कमरा मिल जाए, you don't take out all your clothes and hang them up and spread them all around and do all of that, right? क्योंकि पता है यहाँ से अभी हमको निकलना है, हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ही आए हैं, है ना? तो ऐसे ही मन में हमें कौन सी बातों को रखना है और कौन सी बातों को नहीं रखना है। We need to travel light over here. जितना लाइट उतनी मेरी बुद्धि अच्छे से काम करेगी, उतना मैं हैप्पी रहूंगी। मीन्स आई नीड टू लेट गो ऑफ मेनी थिंग्स। तो हमें क्या लेट गो करना है? हमें लेट गो क्या करना है? पुराने बिलीफ्स। गुस्से के बिना काम नहीं चलता, 4 सुनाओ तो बेटर है। अब हमें ज्ञान तो समझ आ रहा है, पता भी होगा, पर आज हमने डिसाइड किया, रिवाइज किया कि हमने इन चीजों को अप्लाई करना है। देन हम करते क्या है?
वी होल्ड अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ब्लेम गेम, तूने किया, तेरे कारण मुझे ऐसा हुआ, पुरानी बातों को याद करते हैं, एंड पुराने जो लोग हैं उनको लेबल लगा देते हैं, ये तो है ही ऐसा, ये कभी ना सुधरा, लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, देन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माई सेल्फ, लिविंग अप टू अदर्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ मी, प्लीजिंग पीपल, इस तरह की सारी बातों को, ये क्या है, ये मेरे अंदर एक हैवीनेस क्रिएट करती है. तो लेट गो ऑफ ऑल दिस. When I start letting go of all this, then I feel light. Then I have the power to pack up. तो मन को इन चीजों की ट्रेनिंग देनी है ना. और हम कहें कि अब इतना कुछ हो गया, हमने इतने अभी तक हमने ये इसको चीज को अप्लाई नहीं किया, उस चीज को अप्लाई नहीं किया, ऐसे ऐसे अगर संकल्प आ रहे हैं, तो हमारे को एक भी चीज याद रखनी है. जैसे दूध गिर गया, हम उसको उठा के नहीं पी सकते, उसको यूज नहीं कर सकते, गिर गया, अब देखो, साफ करो, पुरानी स्लेट को क्लीन करो, आगे बढ़ो. नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है. जैसे एक नाव है, नाव का क्या काम है, पानी में जाना. और नाव का काम है पानी में जाना, और नाव में बैठने से पहले हम क्या देखते हैं कि उसमें कोई होल ना हो. होल होगा तो सारा अंदर पानी आ जाएगा. तो हमने ये देखना है कौन से होल्स बना के रखे हैं, जिससे ये सारी बातें आकर मेरे मन की नाव को डुबो देती हैं, मेरे अंदर एक भारीपन क्रिएट करती है ना. तो और जो नाव, और ऐसे नहीं है कि हम जीवन जीना बंद कर दे, सन्यासी की तरह हम जंगल में चले जाएंगे. लाइफ मीन्स लिविंग लाइफ विद अदर पीपल. मैन इज अ ग्रेगेरियस एनिमल कहते हैं, राइट. वी आर ऑल friendly people, we want to be with people, we want to be with other souls. पर वहां रहते हुए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है. तो बैग और बैगेज को पॉजिटिविटी में रखना, पॉजिटिविटी अपने अंदर धारण करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो रावण के सिरों को काटना है, देवियों की भुजाओं की जो शक्ति है वो अपने अंदर उसको इमर्ज रूप में रखना है, और उनको यूज करके उस प्रोग्रेस में चलना है. ठीक है ना. तो उससे हमारा जीवन जो है, जैसे है ना, हमारे अंदर जो वर्च्यूज हैं उसकी फ्रेग्रेंस सारी जगह फैलेगी, हम सुखदायी बन जाएंगे. जैसे एक परफ्यूम लगाते हैं तो किसी को पसंद आ जाए तो कहते हैं ना, तुमने कौन से वाला परफ्यूम लगाया, मुझे भी ये लगाना है. तो परफ्यूम जिसने लगाया होता है वो ये नहीं कहता इस तक सिर्फ जाएगी, वो जहां जाता है सारी जगह वो परफ्यूम फैलती है. तो मेरे अंदर के गुणों की फ्रेग्रेंस जो है मैं सबको देती चलूं. शक्तियों को यूज करते हैं तो जो हमारे गुण हैं वो इमर्ज रूप में रहते हैं. हम सबको जो अच्छा लगता है ना वो मैं हूं. हम सबको शांति अच्छी लगती है, मैं शांत स्वरूप हूं. हमें प्रेम अच्छा लगता है, मैं प्रेम स्वरूप हूं. हमें इन शक्तियों का होना अच्छा लगता है, मैं ये शक्ति स्वरूप हूं. ये मेन 8 शक्तियां और इनके साथ लिंक अनेक शक्तियां. हम अगर एक पर भी काम करते हैं तो बहुत हमारी प्रोग्रेस होती है. तो एक हम आज होमवर्क क्या लेंगे, आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहें, उसके साथ हम ऐड करेंगे. अब सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति जो मुझे लगता है हमारे को हमेशा उसको यूज करते रहना है, वो है अंतर्मुखता. टू गो विद इन, अपने आप को बार बार आत्मा अनुभव करना. मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं. बस इसको हमने हर घंटे में एक बार इमर्ज करना है, along with everything else that you are doing and whatever else you are doing. कोई उसमें टाइम तो आपको शायद ज्यादा नहीं लग रहा होगा, सिर्फ आपके थॉट्स ही आपको परेशान करते होंगे, राइट. तो अभी हम 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, टाइम काफी हो गया है. Any questions? I'm happy to answer. No questions? हाँ जी, बोलो सोनम. What do you do, when you do not want to indulge in any gossip or negative talk, because a lot of people feel that, आप
आप उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे, या आप वो कोई किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, आप नहीं इंडल्ज करना चाहते हो, probably you're trying to go follow a certain path. What do you do? Probably that someone is very close to you also, Yeah. but that person feels that you don't reply at all to these things. हाँ, तो आप उनको एक सेंटेंस में आंसर कर दो, आई अंडरस्टैंड, फुल स्टॉप, एंड देन चेंज द टॉपिक. आप एक और बात नोटिस करना, आज की हम रोज ना मुरली का एक पॉइंट रिकॉर्ड करते हैं और ग्रुप में भेजते हैं. मतलब उस ग्रुप में अभी आप लोग नहीं हो, जो आप में से जो होना चाहेंगे उनको मैं ऐड कर दूंगी. आज का यही पॉइंट था कि ये जो बातें होती है ना बाहर की, मैंने आज रिकॉर्ड किया है, मिकेल कल का या परसों का. तो हम जब उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते ना, तो सामने वाला बोलना बंद कर देता है. हमारा थोड़ा देखो कोई अंश है इंटरेस्ट का, अगर हमारा कोई अंश रह गया है ना इंटरेस्ट का, वो और बोलता है. फिर हम कहते हैं हम तो नहीं बोल रहे थे, वो बोलता है हम क्या करें. आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाना चाहिए इसमें, तो वो बोलना बंद करेगा. आप जितना अपने ऊपर फोकस करोगे उतना आप आपके रिलेशनशिप पे नहीं. आई नो व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस. आई नो पीपल से आप मतलब ये तो मेरे लिए जो वर्ड यूज किया बावरी हो गई है. सो कहने का मतलब ये है, ठीक है, दैट्स ओके, बट यू हैव टू सी व्हाट इज गिविंग यू बेनिफिट. पर आप एक शब्द जरूर बोल दिया करो, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, बट यू डोंट वांट टू इंडल्ज इन इट. क्योंकि हम जितना इन बातों को फैलाते हैं उतनी वो बात बढ़ती है. वेयर द थॉट गोज द एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर द एनर्जी फ्लोज द थिंग ग्रोज. सो इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम एंड कंटिन्यू टू टॉक, आई एम स्प्रेडिंग व्हाट. मैं वो जो अमृत जैसा पूरा वातावरण था, मैं उसको फिर से पॉइजनस बना रही हूँ. ब्यूटिफुल एटमोस्फियर को मैं दूषित कर रही हूँ, है ना. किसी की भी बात कर रही हूँ, वो हमारे सामने हमारी हियरिंग रेंज में भी नहीं है, पर हमारा थॉट उस तक भी पहुंच रहा है. तो आप उसको, जो आप ज्ञान सुन रहे हो, जो आप अप्लाई कर रहे हो, आप उसको सुनाओ और उसको भी इंकरेज करो कि आप भी ये करो. पर डोंट से मैं ज्ञान सुना रहा हूं. आप बोलो मैंने ये टेक्निक ट्राई करी, आप भी करो. जैसे ही बोलोगे ज्ञान सुना रहा हूं, कहेंगे तुम्हारी बातें, डोंट लेक्चर मी, है ना. खास करके जो हमारे दोस्त होंगे वो तो पक्का बोलने वाले हैं, या जो हमसे छोटे हैं, है ना. छोटों को तो लगता है ना ये बड़े हैं ना, तो सारा दिन लेक्चर ही करते रहते हैं ना. आपकी बेटी तो छोटी है, नहीं तो बच्चे कहते हैं मम्मी प्लीज स्टॉप यार, प्लीज रिलैक्स, चिल, ऐसे बोलते हैं हमारे को बच्चे. सो ये बात है, ठीक है. ट्राई करो. आपको जितनी आपकी इंटेंशन अच्छी होगी, आपको उतनी सफलता भी मिलेगी. चैलेंज आएगा, उसको हम क्रॉस करेंगे. और आप नोटिस करोगे जो हम एक्सेस बात कर रहे होते हैं फोन्स पे, अनलेस वी आर टॉकिंग ऑफ समबडीज प्रॉब्लम, अनलेस इट्स योर वर्क और समथिंग, इट इज अनदर थिंग. ज्यादातर बातें गॉसिप ही होती हैं, किसी के बारे में होती हैं. इफ यू आर नॉट गोइंग टू गॉसिप, देयर इज हार्डली एनीथिंग दैट यू हैव टू से. You could be discussing something nice also. That is another thing. आप कोई रेसिपी डिस्कस कर रहे हो, आप कोई अपनी सिचुएशन या लाइफ की अचीवमेंट डिस्कस कर रहे हो, दैट इज ओके. वो आप जज कर लोगे, यू विल नो, है ना. और जैसे जो कहते हैं ना, हम किटी पार्टी में गए, हमने ये किया, मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग विद किटी पार्टीज एज लॉन्ग एज वी आर नॉट इंडल्जिंग इन दिस वेस्ट. नथिंग रॉन्ग विद एनीथिंग. सिर्फ मुझे देखना है मेरी शक्ति कहाँ कम हो रही है, मुझे शक्तिशाली बनना है. दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने वेस्ट थॉट में जाना ही नहीं है, बस अपने ऊपर फोकस, है ना. तो अभी मैं आपको वो सॉन्ग भी भेज दूंगी. मैं योग 2 मिनट का कराऊं कि मैं सॉन्ग लगाऊं, और सॉन्ग को ध्यान से सुनोगे. चॉइस इज योर्स. वी आर फ्यू ऑफ अस लेफ्ट. सॉन्ग दीदी, सॉन्ग सोनम पूजा, वो आपको क्या ठीक है. चलिए, पर ध्यान से सुनना सारे शब्दों को. मैं स्क्रीन शेयर भी करूंगी, वो सारी शक्तियों का इसमें है.
स्वरूपा तू ही तो है नव दुर्गा अष्ट शक्ति स्वरूपा तू है देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा तू है शक्ति तुझ में बसी नाम निधि जगा ले तू ये स्मृति तू ही है शिव शक्ति जो जग से रहती है न्यारी वो आत्मा है सबकी प्यारी जो जग से रहती है न्यारी वो आत्मा है सबकी प्यारी जो न होती प्रभावित कहीं ये है संकीर्णता की शक्ति पुरानी बातों को जो मन से निकाले पुरानी बातों को जो मन से निकाले न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले क्षमा के गुण से समेटे हर बात वो है समेटने की शक्ति तू ही है शिव शक्ति तू ही है शिव शक्ति भले निंदा या अपमान कोई करे जगत माता तुम उनको स्नेह करे तू ही तो है सहन शक्ति ग्लानि उदासी से तू है परे समाने सभी के व्यवहार को समाने सभी के व्यवहार को ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति भरे तू शक्ति भरे तू है शक्ति जगा ले तू ये स्मृति शांत मन साक्षी दृष्टा न कोई प्रभा न कोई दवा परख शक्ति तेरा स्वभाव निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान चाहे कोई तूफान आए तूफान को भी तो तोहफा बनाए सामना करने की शक्ति जगाए हर कदम में सफलता तू पाए हर कदम में सफलता तू पाए तू है शक्ति जगा ले तू ये स्मृति ठीक है, ये हमारा आज का लेसन रहा। कल हम करेंगे
पूरा चक्र, काल चक्र, कैसे साइकिल मूव्स ऑन, और हम कौन से पॉइंट पर अभी हैं, एंड ये जिस पॉइंट पर हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है, और यही टाइम है हमें स्वयं को ट्रांसफॉर्म करने का. टाइम इज शॉर्ट, वी नीड टू चेंज फास्ट, एंड व्हाई, हाउ, ऑल ऑफ दैट. ठीक है. और कोई आपके मन में क्वेश्चन आए, प्लीज फील फ्री टू आस्क. यू डोंट ऑलवेज हैव टू अग्री विद मी. मेरे को भी अपनी शक्तियों को यूज करने का मौका दो. ओम शांति दीदी. Om थैंक Shanti. यू. ओम शांति. थैंक यू दीदी. Thank you, Didi.